Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Alright class, today's lecture is slightly a new topic, that is functions. From book, this is chapter number 5, and according to sequence of our slides, this is slide number 7, that is functions. These are the topics that we need to cover. These are our outline of the chapter. The topics are what are functions. First of all, we will see the introduction of functions, what are they, what are their types, and then how functions are declared, how they are called, and how they are defined. Then the next topic is function syntax, its components, and how to draw its flowchart. There are two types. There are two ways of passing parameters to function. One you can call by value and the other call by reference. These both topics we will cover in our lectures. Then there is a topic returning values, how to return values using functions. These are different varieties of functions, or you can say types of functions, that are overloaded function, recursive, inline functions, and nested functions. Then our lectures ended up with exercises. The lecture is going to be very lengthy, so it will be uploaded in different parts. In today's part, that is part number 1, we are going to discuss the first 4 topics of the outline. That is, what are the functions, its types, its declaration, call, and definition, and syntax, components, and flowchart. In our next part, we will discuss the passive parameters and returning values. Now, what are functions? A function groups a number of programs statements into a unit and gives it a name. Means a number of program statements, a chunk of program, basically you are making it a different function and a separate function. What are functions? Actually, what are functions? We have already seen one type of function, that is main. The identification of function, and how can you identify that it is a function in a program? Its simple identification is it has an identifier or a simple name followed by round brackets. For example, the word main, MAIN, उसके फौरन बाद आपके पास round brackets आ रही होती हैं. This indicates that main is a function. Main का काम क्या है? उसके अंदर जो भी chunk of program है, code of program है, उसको run करना, उसको execute करना. एक और functions हैं कुछ, अगर मैं नाम लूंगी तो आप लोग को रिवाइज हो जाएंगे. एक फंक्शन हमने पढ़ा है, फंक्शन वर्ड यूज नहीं किया था, लेकिन एक कमांड हमने पढ़ी थी सेट डब्ल्यू. अगर याद हो, सेट डब्ल्यू या सेट विथ कमांड जो थी, उसके फौरन बाद एक ब्रैकेट भी थी, राउंड ब्रैकेट्स. और सेट डब्ल्यू कमांड में फिर अगर हमने उस ब्रैकेट में लिख दिया 15, तो आपके कर्सर जो है वो राइट हैंड साइड 15 करेक्टर्स राइट हैंड साइड चला जाता है, वहां से टाइपिंग स्टार्ट करते हैं. जिन बच्चों ने यूज किया सेट डब्ल्यू कमांड या जिन्होंने वो स्लाइड पढ़ी थी, तो सेट विथ के फौरन बाद राउंड ब्रैकेट्स थी. तो सेट डब्ल्यू कमांड इज बेसिकली अ बिल्ट इन फंक्शन. बिल्ट इन फंक्शन यानी कि कंप्यूटर ने अपने फंक्शंस बना के रखे हुए, एंड वी आर जस्ट यूजिंग दोस फंक्शंस. वी आर नॉट ऑल्टरिंग दोस फंक्शंस. हम उनको चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ यूज कर रहे हैं. सेट डब्ल्यू कमांड यूज करने के लिए या बिल्ट इन फंक्शन यूज करने के लिए उसकी अपनी स्पेसिफिक डायरेक्टरी, अगर आपको याद हो, IMNF के नाम से था, IO मैनिपुलेटर्स. तो मतलब वो बिल्ट इन फंक्शन उसमें मौजूद है. तो अगेन वो फंक्शन की एक एग्जाम्पल भी है, इसके साथ ही वो IO मैनिपुलेटर के टाइप भी है. एक और फंक्शन क्लास, अगर आपको याद हो, हमने जब मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखना सीख रहे थे, तो हमने क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी, SQRT, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए. SQRT के फौरन बाद राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, और उस राउंड ब्रैकेट में आप जो वैल्यू लिखते हैं उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाता है. तो SQRT is basically a built-in function provided by the C++ compiler, provided by its libraries, कि आप बजाय के पूरी इक्वेशन बनाए आप SQRT यूज कर लें, और जो भी इसमें वैल्यू रखेंगे उसका स्क्वायर रूट सिस्टम जनरेट कर लेगा, कंपाइलर आपको जनरेट करके दे देगा. तो वो अगेन बिल्ट इन फंक्शन है. उसके लिए फिर हम math.h जो इसकी पर्टिकुलर लाइब्रेरी है वो हम ऐड करते हैं. इसी तरीके से एक और हमने पढ़ी थी POW कमांड. POW फौरन उसके बाद ब्रैकेट थे, POW
is the function is a built-in function used to calculate the power of a variable. तो फॉर एग्जाम्पल POW जो भी कमांड का एक स्पेसिफिक कोड है वो आपने लिखा, फौरन आपने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर आपको बेस और एक्सपोनेंट देना होता है जो उसका सिंटैक्स का पार्ट है। तो हम बेस देते हैं, उसका एक्सपोनेंट देते हैं और उस बेस की उतनी पावर कैलकुलेट हो जाती है। तो ये सारे बेसिकली हर वो आइडेंटिफाइज नेम, हर वो नेम जिसके फर्स्ट बार डाउन ब्रैकेट्स है वो फंक्शंस की कैटेगरी में आ सकता है। तो अब तक हमने बिल्ट इन फंक्शंस यूज किए हुए हैं और बिल्ट इन फंक्शंस अपनी स्पेसिफिक डायरेक्टरीज में होते हैं, वो लाइब्रेरीज हम हेडर में ऐड करवा रहे होते हैं। तो फंक्शन यूज करना हमारी न्यू चीज नहीं है, हमने ऑलरेडी हम इससे फैमिलियर है। फंक्शन बनाना, खुद बनाना, ये न्यू चीज है। तो हमारे पास जो ये आज का लेक्चर है इसमें हम ये फंक्शंस अपने खुद बनाएंगे, ठीक है। तो function basically is a number of program statements which are joined together in a unit and you give it certain name. This unit then can be invoked from other parts of the program. फिर इस यूनिट को आप प्रोग्राम में डिफरेंट किसी भी पोजीशन पे आप इसको कॉल आउट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। आपके फंक्शंस अगेन वो एक अलग कोड ऑफ प्रोग्राम होंगे जो कि मेन के बाहर कहीं डिफाइन हुए होंगे। Any sequence of instructions that appears in a program more than once is a candidate for being made into a function. अब हम फंक्शन बनाएं, किस पार्ट ऑफ प्रोग्राम को हम फंक्शन बनाएं, तो द बेस्ट कैंडिडेट टू मेक अ फंक्शन, जो बेस्ट कैंडिडेट है वो ये कि वो इंस्ट्रक्शंस जो बार बार प्रोग्राम में अपेयर हो रही हैं, आप उस पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को निकाल के एक फंक्शन डिक्लेयर कर दें। ये चीज़ें आपको आगे स्लाइड्स में समझ आ जाएंगी, ये जो सारे वर्ड्स हैं। फंक्शन इज यूज टू रिड्यूस द प्रोग्राम साइज। फंक्शन का एडवांटेज ये है कि जो आपका प्रोग्राम का साइज है उसको वो छोटा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोड ऑफ प्रोग्राम 4 दफा रिपीट हुआ आपके प्रोग्राम में, आपने क्या किया, उस कोड ऑफ प्रोग्राम को बजाय 4 दफा रिपीट करने के उठा के नया फंक्शन बना दिया। अब वो एक ही दफा आपने बनाया है लेकिन आप 4 दफा उसको कॉल कर रहे हैं प्रोग्राम में। तो जो 4 दफा आपने 6 लाइन्स लिखी हुई थी, अब वो 6 लाइन अलग से प्रोग्राम है और आपके प्रोग्राम का जो साइज है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि अब आपको सिर्फ कॉल करना है, बार बार उन 6 लाइन्स को रिपीट नहीं करना। इट प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्रोग्रामर व्हाइल कोडिंग। तो प्रोग्रामर के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी है, एक एडवांटेज है कि कोडिंग के दौरान बार बार एक ही चंक को रिपीट करने से अच्छा है यू मेक अ फंक्शन फॉर इट and then just call that function in your program according to your use. Now there are two types of function, built-in and user-defined. Built-in functions को हम standard functions भी कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिफरेंट जगहों पे यूज कर चुके हैं लेकिन हमने नाम यूज नहीं किया था। तो अब हम बता दिया अभी कि फंक्शन जो है बेसिकली वो कौन कौन से आप फिलहाल यूज कर चुके हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन इज द टारगेट ऑफ अवर टुडेज लेक्चर। जो हमें चीज सीखनी है कि हम खुद कैसे डिफाइन करें, हम खुद कैसे बनाएं। built-in function, they provide ability to the programmer to accomplish a specific operation. प्रोग्रामर को ये एबिलिटी देता है कि कोई खास काम है तो वो उसको आराम से कर सकता है। प्रोग्रामर इज फ्री इन यूजिंग बिकॉज द कोड इज सप्लाइड बाय द सिस्टम। प्रोग्रामर बस उस फंक्शन को कॉल करता है और उसको यूज कर लेता है, प्रोग्रामर को खुद उसका कोड डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। Saves programmers time and provides clarity because they do not have to be redefined or rewritten. प्रोग्रामर का टाइम बच रहा है क्योंकि आप बिल्ट इन फंक्शन जब यूज कर रहे हैं तो आपको फंक्शंस बनाने की जरूरत नहीं है, दोबारा उस कोड को रिराइट करने की जरूरत नहीं है, मॉडरेट या ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है। तो बिल्ट इन फंक्शन यूज करने से जो C++ के अपने कंपाइलर में अपनी लाइब्रेरीज में फंक्शंस मौजूद हैं, अगर आप वही यूज कर लेंगे तो टाइम सेव हो जाएगा, आपके पास जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और रीरेटिंग का झंझट जो है दोबारा उस कोड को हम डिजाइन कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। Already available in libraries as setw, IO manipulator में ये वाला built-in function मौजूद है, getch and getche, ये दोनों करेक्टर लेने के लिए। getch gets a character and getche command. This function getche is get a character with echo. echo यानी कि जो करेक्टर आपने इंटर किया वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने n इंटर किया तो n मुझे स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा। और गेट ch कि बस मैंने n इंटर किया, मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आया और प्रोग्राम ने n ले लिया। इन कौन आयो हेडर फाइल, कौन आयो जो हेडर फाइल थी उसमें ये कमांड थी गेट ch कमांड। आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स प्रॉब्लम में मौजूद है, एग्जांपल प्रोग्राम्स जो हमने बनाए हैं उसमें ये फंक्शन यूज हुआ है।
सिमिलरली SQRT, पावर, कॉस, साइन, ये तमाम फंक्शन जो है वो मैथ या सी मैथ की लाइब्रेरी में मौजूद है। तो ये सब बिल्ट इन फंक्शन है। SQRT दोबारा कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। यू हैव द एबिलिटी दैट compiler has already this function in its library, so you just call it and use it rather than making a square root function again. दे आर कम्प्लीटली डीबग, ये बिल्कुल डीबग हुए में है, एफिशिएंट है एंड ऑलवेज प्रोड्यूस अ प्रिसाइज आउटपुट। और ये सिस्टम के अपने बनाए गए हैं, इनके रिजल्ट्स भी बिल्कुल प्रिसाइज होते हैं। प्रिसाइज मतलब कि बिल्कुल करीब करीब, ठीक है, एग्जैक्ट होते हैं। ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस को हम इंट्रिंसिक फंक्शंस भी कहते हैं, तो ये बात याद रखने की है। जाहिर है अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस इसकी हमें इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन जाहिर है वो हर यूजर के हिसाब से नहीं है। जनरल फंक्शंस डाल दिए जैसे पावर, स्क्वायर रूट, ये पूरे दुनिया में स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो उसके फंक्शंस बना के डाल दिए। अब जब हम खुद फंक्शन बना रहे हैं अपने कोड के हिसाब से तो इट मे बी कस्टमाइज, ठीक है, तो हमें अपने फंक्शन बनाने का भी एडवांटेज जो है C++ देता है। User defined function allows programmer to define their own functions. Using functions, we can structure our program in a more modular, flexible way. हम ज़्यादा flexibility के साथ अपने programs को बना सकते हैं। The most important reason to use functions is to aid in the conceptual organization of the program. जो बेसिक यूज होता है, बेसिक रीजन होता है फंक्शंस इस्तेमाल करने का, हम अपने प्रोग्राम में कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। अपने प्रोग्राम के जो लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसको फ्लेक्सिबल या इजी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Dividing a program into functions provides additional, more powerful ways to organize program. अगर आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ देंगे तो ये आपकी कोडिंग को या प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा पावरफुल बना देगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, हार्डवेयर प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा इंटेलिजेंट वे है कि आप छोटे छोटे उसके मॉड्यूल्स बनाए, उसको टेस्ट और डीबग करके रखें। हार्डवेयर में पर जो यूज़ होता है वो ट्रबल शूट यूज़ होता है, यानी जो भी उसमें मिस्टेक्स है, करंट का, वोल्टेज के जो भी मसले मसाले है उसको हल कर दिया आपने। तो हमारे पास जब प्रोजेक्ट्स हम बना रहे होते हैं हार्डवेयर के, हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स कहते हैं, उसमें बना बना के तैयार कर लेते हैं। फिर एक वक्त आता है कि हम उन सबको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट यानी कि कनेक्ट कर लेते हैं। इसका आउटपुट इसका इनपुट है, इसका आउटपुट इसका इनपुट है, इसको ये इनपुट देना और ये आउटपुट फाइनल है, वट। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है ताकि हार्डवेयर ट्रबल शूट करने में भी आसानी हो। इनकेस आपका हार्डवेयर का रिजल्ट एंड में नहीं आता तो आप हर मॉड्यूल को अलग अलग चेक करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस प्रोजेक्ट के हिस्से में मसला है, बजाय कि आप पूरा प्रोजेक्ट एक साथ बनाएं फिर एक साथ उसको टेस्ट करें, ठीक है। तो ये जो तरीका है यही चीज़ प्रोग्रामिंग के लिए भी वैलिड है। आप पूरा प्रोग्राम बनाएं और उसको एक साथ टेस्ट करें। इससे बेहतर है कि आप छोटे छोटे फंक्शंस बना के रख लें, वो फंक्शंस छोटे छोटे सही काम कर लें, फिर आप उसको सबको कनेक्ट कर लें। और इन केस कनेक्ट करने के बाद वो आउटपुट नहीं दे रहा है, ये एग्जैक्ट आउटपुट नहीं दे रहा है, तो आपने उन फंक्शंस को दोबारा चेक कर लिया तो आपको पता चल गया एग्जैक्टली किस कोड में मसला है। तो ये फैसिलिटी है। प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स जो बड़े हैवी होते हैं उसको बनाना भी ऐसे ही चाहिए हमेशा। The programmer uses this type of function if the availability of the system subtract function is inadequate. जो सिस्टम ने हमें फंक्शन दिए थे अगर वो हमारे inadequate है तो फिर हम यूजर डिफाइन की तरफ जा रहे होते हैं। Slide number 7. Function declaration, call and definition. A very important topic. Okay, now you are going to define your own function. These are the three parameters you must know. How functions are declared, how they are called, and how they are defined. एक सिंपल क्लास आपके पास प्रोग्राम है। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी हमने किया था कि कोई वर्ड्स लिखने को दिया गया था, वो वर्ड्स आप लिखें, उसमें आपने एस्केप सीक्वेंसेस भी यूज़ करने हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ करने हैं, डेल कमांड भी यूज़ करनी है, ठीक है। तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर को लेके इसको यहाँ पे रिवाइज करने के लिए किया गया क्योंकि ये मेन फंक्शन बना हुआ है, अब हम इसमें अपना फंक्शन बनाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। एक प्रोग्राम है जो कि एक सर्टेन पोएम को प्रिंट कर रहा है, जो कि आपको यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि जैसे जैसे हमने टाइप किया जॉनी जॉनी यस पापा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है वो आपके पास स्क्रीन पे एज इट इज नजर आ रहा है। अब फंक्शन का एडवांटेज क्या हो सकता है क्लास, मैं ये चाह रही हूँ कि हर एक लाइन के बाद जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, इसके बाद स्टैटिक की एक लाइन प्रिंट हो जाए जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है।
eating sugar, no papa. इसमें पूरी स्टैटिक की एक लाइन प्रिंट हो जाए। मतलब मैं फंक्शन ही बनाना चाह रही हूँ जिसका काम ये हो कि हर लाइन के बाद स्टार की लाइन प्रिंट कर दे। सिंपल। अब स्टार की लाइन, स्टैटिक लाइन जो है ये कंपाइलर में मौजूद नहीं है, तो मुझे खुद डिज़ाइन करनी है, मुझे खुद बिल्ड करनी है। खुद बिल्ड करने के लिए एक तरीका तो ये है, नाउ आई वांट दैट आफ्टर ईच लाइन देयर स्टार लाइन मस्ट बी प्रिंटेड। आई कैन डू दिस बाय टाइपिंग सी आउट। एक तो तरीका ये है कि मैं सी आउट कमांड लिखूँ और ये पूरी लाइन को एज इट इज टाइप करवा दूँ आफ्टर एवरी कमांड या आफ्टर एवरी स्टेटमेंट। तो हर स्टेटमेंट के बाद ये स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। और बाय यूजिंग फंक्शंस। दूसरा तरीका ये है कि मैं यही काम फंक्शंस के थ्रू कराऊँ। तो फंक्शंस के थ्रू देखते हैं कैसे हो रहा है। वही सेम प्रोग्राम था इंट मेन का, ठीक है। क्योंकि मुझे जॉनी जॉनी यस पापा ये फर्स्ट लाइन के बाद स्टार लाइन प्रिंट करानी थी, तो एक फंक्शन मैंने खुद बनाया है, उसका नाम खुद बनाने का मतलब ये नाम मैंने खुद दिया है स्टार लाइन के नाम से, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि ये काम क्या करे। स्टार लाइन और ये फॉरन, ये फंक्शन का जो आपको राउंड ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, सेमीकोलन। फिर मुझे चाहिए था ईटिंग शुगर नो पापा के फौरन बाद जो है दोबारा स्टार लाइन प्रिंट हो जाए, तो मैंने दोबारा स्टार लाइन वाला फंक्शन यहाँ पे यूज किया है। चारों लाइन के बाद स्टार लाइन फंक्शन यूज किया है। ये जो स्टार लाइन फंक्शन है क्लास, ये मेन में जब हम इसको यूज करते हैं उसको हम कॉल करना कहते हैं, यानी कि हमने फंक्शन कॉल किया है। फंक्शन कॉल करने से पहले, फंक्शन में बुला रहे हैं उससे पहले जाहिर है मुझे कंपाइलर को बताना है कि इस नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर करने का मतलब ये बिल्कुल जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इंट नम, हम बता रहे हैं कि इंटीजर टाइप का एक नम नाम का वेरिएबल बना दो। उसके बाद हम नम सिर्फ यूज कर रहे होते हैं, बार बार उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे होते, सॉरी बार बार उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे होते। यही काम जो है यहाँ पे है कि जो भी फंक्शन क्योंकि आप खुद बना रहे हैं, तो you need to declare that function first so that compiler may know that star line के नाम से कोई फंक्शन है जो हो सकता है आने वाले वक्तों में कॉल किया जाए, तो वो उस फंक्शन की अपनी लाइब्रेरी पे या अपने कंपाइलर में अपने रैम में जगह बना के रख दे। डिक्लेयर क्या कैसे करते हैं सेंटेंस की सारी अभी हम वन बाय वन सब स्लाइड्स में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट, जब भी फंक्शन कॉल करना होता है, फंक्शन कॉल करने से पहले वो फंक्शन डिक्लेयर करना लाजमी है, फिर आप फंक्शन कॉल करेंगे। अगर आपने फंक्शन कॉल कर लिया, वो चीज़ आपने बताई ही नहीं थी, तो फिर वो एरर आ जाता है, बिल्कुल ऐसी जैसे आप नम वेरिएबल यूज कर रहे हैं मगर आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो नम के नीचे अंडरलाइन आ रही होती है रेड कलर की, वो नम नाम का वेरिएबल ढूंढ रहा है लेकिन उसके पास है ही नहीं, तो वही चीज़ हो जाएगी कि स्टार लाइन के नाम का फंक्शन ढूंढ रहे हैं मगर उसके पास है ही नहीं। तो यू नीड टू डिक्लेयर इट मस्ट बिफोर इट इज कॉल्ड। जब भी ये कॉल किया जाए उससे पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए, डिक्लेरेशन की जगह मेन से पहले है, रिमेंबर, ठीक है। जब भी फंक्शन डिक्लेयर होगा वो मेन से पहले डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि मेन के अंदर ये कॉल हो रहा है, मेन के अंदर डिक्लेयर नहीं होगा। देन दिस इज दीज 4 लाइंस आर नोन एज फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन हैज बीन कॉल्ड 4 टाइम्स विद इन मेन, ठीक है, 4 दफा हमने इसको कॉल किया। ये कर क्या रहा है, कॉल करके से काम क्या करना है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो व्हाट डज इट डू, इट बेसिकली print 30 times the star। तो काम क्या कर रहे हैं, फॉर कमांड हमें पता है कि 1 से लेकर 30 तक कमांड चलानी है, क्या, प्रिंट कर दो स्टार। तो 1 से लेकर 30 तक तो स्टार प्रिंट करने इसका काम है। क्योंकि 4 दफा कॉल हुआ है तो चारों लाइन के बाद जो है ये स्टार प्रिंट करेगा, इसका काम ये है। तो अगर मैं ये स्टार लाइन 4 दफा यहाँ नहीं लिखूंगी, तो ये जो 3 लाइन का कोड है ये मुझे यहाँ पे भी डालना है, 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 ठीक है। तो ये 12 लाइन्स हो जाएंगी जो प्रोग्राम में एडिशनल है। तो बजाय उस 12 लाइन्स को बार बार डालने के, बार बार लूप लगाने के, हमने क्या किया, उस नाम का एक फंक्शन बना दिया। अब मैं इसको 4 दफा करूँ, अगर मेरे पास बड़ी पोयम है, 20 लाइन की पोयम है, तो मैं 20 दफा स्टार लाइन को बस कॉल करूंगी और वो प्रोग्राम आपका चल जाएगा। सो दीज आर द 3 पार्ट्स, नोट करते जाइए। फंक्शन डिक्लेरेशन इज द दिस लाइन which has some data type, then an identifier followed by round brackets and ended with a semicolon. Then the second part of function is known as calling the function. Calling the function is always done in main. It may be called in another function as well, but wherever it is called, it has been declared.
बिफोर इट इज कॉल्ड। स्टार लाइन के नाम से हमने फंक्शन कॉल किया, तो इस वक्त 4 दफा हमने कॉल किया। देन फंक्शन डेफिनेशन, उस फंक्शन को करना क्या है, कॉल कर लिया, अब उसका काम क्या है, तो जो भी काम आपको करवाना है वो आप यहाँ पर उसका कोड लिखेंगे। कोड लिखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जैसे मेन के बाद आपने अपना कोड स्टार्ट कर दिया, इसी तरह स्टार लाइन के बाद आपने ब्रेसेस के अंदर अपना कोड स्टार्ट कर दिया। सिंटैक्स बिल्कुल वही होगा जो मेन का होता है। कोई डेटा टाइप होगी, ठीक है, नाम होगा, ब्रैकेट्स होंगी, मेन में कोई सेमीकोलन नहीं आता, डेफिनेशन में कोई सेमीकोलन नहीं आएगा। ब्रैकेट्स स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, जो कोड आपको लिखना है, जो भी काम करवाना है उसका कोड सिंपल। इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, सारी चीजें इसमें वेरिएबल्स की हो सकती हैं, लूपिंग इस्तेमाल हो सकता है, सारी चीजें विद इन फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है। एंड एंडेड विद कर्ली ब्रैकेट्स अगेन। नाउ let's see each type individually with respect to its syntax. Function declaration. Word star line ब्रैकेट्स, ये वाली जो लाइन थी बिल्कुल फर्स्ट मेन से ऊपर, इस वाली लाइन की बात हो रही है, ठीक है, ये एज इट इज लाइन यहाँ पे लिख दी गई है। दिस लाइन इज नोन एज फंक्शन डिक्लेरेशन। यू आर डिक्लेयरिंग अ फंक्शन, यू आर टेलिंग द कंपाइलर दैट देयर इज अ फंक्शन दैट हैज स्टार लाइन नेम। सिंटैक्स क्या है क्लास, ये नोट कर लीजिए, रिटर्न टाइप आना चाहिए, ठीक है, रिटर्न टाइप यानी जो वैल्यू लेकर रिटर्न हो, जैसे मेन के साथ INT लगाते हैं इंटीजर, तो इस वक्त हमने फंक्शन को बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है, हमने कह दिया है कि वाइड यानी कि नो रिटर्न वैल्यू, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं आएगी। कोई भी रिटर्न टाइप हो सकती है, ये इंड भी हो सकती है, ये चार भी हो सकती है, ठीक है, मेन की जो सारी फीचर्स है वो उसमें एप्लीकेबल है। बहरहाल इस वक्त हमने रखा है कोई रिटर्न वैल्यू नहीं आनी है, तो हमने वाइड लिखा हुआ है। कोई भी रिटर्न टाइप आपको देना है, देन देयर इज अ स्पेस, सिंटैक्स नोट कर लीजिए, ठीक है, रिटर्न टाइप स्पेस देन नेम, जो आपको आइडेंटिफायर जो भी नाम देना है, हमने स्टार लाइन दिया हुआ है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं अदर देन कीवर्ड। देन राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर इज ऑप्शनल, यू मे गिव एनी पैरामीटर, you may not give any parameter. Since we have considered a very basic simplest example, so we are not giving any parameter right now. It is blank. ठीक है, बट अगर मुझे कोई पैरामीटर डालना है तो वो ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर डाल सकते हैं, जैसे सेट w कमांड में हम ब्रैकेट के अंदर 15 डाल रहे होते हैं या 13 डाल रहे होते हैं, जस्ट टू टेल कि इसका पैरामीटर वैल्यू 13 है, ठीक है। तो फिलहाल हमने सिंपल रखा है, मतलब कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फंक्शन डिक्लेयर करना, कॉल करना और डिफाइन करना सीख रहे हैं, बाद में हम पैरामीटर्स भी डालेंगे। तो पैरामीटर इज ऑप्शनल, आपको डालना है आप डालें, नहीं डालें नहीं डालें, इट विल स्टिल वर्क, and then ended with a semicolon. This is the syntax of function declaration. Also called prototypes. Function declaration को हम prototypes भी कहते हैं, since they are the models or blueprints of a piece of a code. बिल्कुल ऐसी जैसा आपका एक हार्डवेयर का बड़ा प्रोजेक्ट होता है, आप उसका एक प्रोटोटाइप वर्जन बनाते हैं यानी छोटा मॉडल बनाते हैं, तो यही चीज इसमें भी है कि प्रोग्रामिंग का ये छोटा प्रोग्राम है, एक बड़े प्रोग्राम का ये छोटा प्रोग्राम है, मॉडल है, उसका ब्लूप्रिंट है, तो हम इसको प्रोटोटाइप कह रहे होते हैं। जो फंक्शन हमें बनाना है उसकी फंक्शन डिक्लेयर करने को हम प्रोटोटाइप्स कहते हैं। दे आर डिक्लेयर्ड एट द टॉप, ये हमेशा टॉप पे डिक्लेयर होंगे, आफ्टर लाइब्रेरीज बिफोर मेन, मेन से पहले डिक्लेयर कर दे, लाइब्रेरीज के बाद, दिस इज द पोजीशन वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। However, you can declare anywhere in the code, but keep in mind it should be declared much before it is called. Above main is not necessary, ठीक है, it's not the only location, it's not the only position of function declaration. It can be declared anywhere, but it should be declared before it is called. कॉल होने से पहले वो डिक्लेयर हो चुका हो। मेन के अंदर डिक्लेयर हो नहीं सकता, तो मेन से बाहर, as we do for declaring any variable, जैसे वेरिएबल कॉल करने से पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं। The second part is calling a function, जो मेन बॉडी के अंदर हमने कॉल की, ये किसी और फंक्शन में भी कॉल हो सकता है, ठीक है। हमारी एग्जांपल में इस वक्त मेन के अंदर 4 दफा कॉल हुआ है। सिंटैक्स देखते हैं इसका। टू कॉल अ फंक्शन इट्स सिंटैक्स इज, नेम आएगा, जो भी नाम रखा है एज इट इज, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डिक्लेरेशन में, डेफिनेशन में, कॉलिंग में, उसके फौरन बाद ब्रैकेट। अगर आपने अंदर पैरामीटर दिया है तो आपको यहाँ पे वैल्यू देनी है। हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया था डिक्लेरेशन में, इसको ब्लैंक छोड़ा था, तो हमने कोई वैल्यू भी दे दी है, इसको ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है।
और उसके बाद सेमीकोलन। ये बिल्कुल ऐसे जैसे वेरिएबल हम यूज कर रहे होते हैं, उसको कोई वैल्यू दे रहे होते हैं और उसके बाद उसको सेमीकोलन लगा रहे होते हैं। तो हमारे पास कॉलिंग फंक्शन का सिंटैक्स हियर इट इज अपियर 4 टाइम्स इन मेन, ठीक है, सेम एज डिक्लेरेशन बट रिटर्न टाइम इज नॉट यूज्ड। फंक्शन कॉल करने का बिल्कुल वही सिंटैक्स है जो फंक्शन डिक्लेयर करने का है, बस डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन में रिटर्न टाइप आ रही होती है, कॉलिंग द फंक्शन में रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न टाइप थी फंक्शन डिक्लेरेशन में, कॉलिंग द फंक्शन में यहाँ पे रिटर्न टाइप मिसिंग है, क्योंकि एक दफा डिक्लेयर हो गया, दोबारा आप उसको डिक्लेयर करेंगे तो फिर वो एरर दे देगा। जैसे एक ही वेरिएबल को आप 2 दफा डिक्लेयर करेंगे तो वो एरर दे देता है। कॉल इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, कॉल को हमेशा सेमीकोलन से टर्मिनेट किया जाएगा। फंक्शन कॉल इज टू इन्वोक और एग्जीक्यूट द फंक्शन। फंक्शन कॉल का मतलब ये है कि जॉनी जॉनी यस पापा के बाद स्टार लाइन वाले फंक्शन पे चला जाएगा, यहीं पे मेन को छोड़ के स्टार लाइन वाले फंक्शन पे चला जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। इन्वोक करना यानी उसको कॉल करना, उसको अपना हिस्सा बनाना, तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये प्रोग्राम में वापस आएगा, ईटिंग शुगर नो पापा प्रिंट करेगा और उसके बाद दोबारा यहाँ मेन से उठ के स्टार लाइन वाले फंक्शन पे चला जाएगा, उसको रन करेगा। वो काम करने के बाद वापस आएगा, टेलिंग लाइन नो पापा प्रिंट करेगा, फिर ये यहाँ से मेन से निकल के बाहर चला जाएगा क्योंकि स्टार लाइन कॉल हो गई है, तो उसका काम करेगा जाके। फिर वापस आएगा, ओपन योर माउथ, हाँ 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 प्रिंट करने के बाद फिर ये वापस बाहर चला जाएगा, स्टार लाइन वाला काम करके ये वापस आएगा और फिर प्रोग्राम यहाँ पे आपके पास एंड होगा। फंक्शन डेफिनेशन, इट कंटेन्स द एक्चुअल कोड ऑफ द फंक्शन, जो आपको काम करवाना है उसका कोड फंक्शन डेफिनेशन में होता है। डिक्लेरेटर मस्ट एग्री विद द डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप, डिक्लेरेशन को हम प्रोटोटाइप भी कहते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन को। फंक्शन डेफिनेशन में जो फर्स्ट लाइन होती है क्लास, बिल्कुल पहली लाइन प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, इस लाइन को हम डिक्लेरेटर कहते हैं। ये डिक्लेरेटर बिल्कुल वही होना चाहिए जो डिक्लेरेशन का था। यहाँ पे बिल्कुल रिटर्न टाइप आएगी जैसे डिक्लेरेशन में रिटर्न टाइप थी, उसके फौरन बाद स्पेस आएगा, स्पेस के बाद नाम आएगा जैसे डिक्लेरेशन में था, उसके फौरन बाद ब्रैकेट्स, अगर वैल्यूज पैरामीटर था तो वैल्यू आएगी, नहीं था तो नहीं आएगी। डिक्लेरेटर और डिक्लेरेशन में ये फर्क है कि डिक्लेरेशन में सेमीकोलन था, डिक्लेरेटर में आखिर में सेमीकोलन नहीं आता। रिटर्न टाइप नेम, आर्गुमेंट टाइप्स इन ऑर्डर, जितने आर्गुमेंट्स हो, इट कैन बी मल्टीपल, मोर देन वन, तो दे मस्ट बी इन ऑर्डर। ये हम पढ़ेंगे जब, तब समझ आएगी लाइन। बहरहाल फिलहाल आपको जो सेंटेक्स याद करना है वो ये कि डिक्लेरेशन और डिक्लेरेटर, डिक्लेरेटर इस डेफिनेशन की जो फर्स्ट लाइन है वो हमेशा डिक्लेरेटर कहलाते हैं। डिक्लेरेटर और डिक्लेरेशन यानी कि जो हमने मेन से पहले डिक्लेरेशन लिखी थी जिसका हम प्रोटोटाइप कह रहे होते हैं, वो दोनों हमेशा सेम होगी। डिक्लेरेशन और डिक्लेरेटर में बस फर्क ही होगा कि डिक्लेरेशन में सेमीकोलन लगा हुआ था, यहाँ पे जब आप डिफाइन कर रहे होंगे फंक्शन को तो कोई सेमीकोलन नहीं आएगा। डिलिमिटर लिखा और उसके अंदर आपने कोर्स डाल दिया। तो ये क्लास क्विकली हम फ्रेंड सेंटेंस देख लेते हैं क्विकली इसकी। तीनों फंक्शन, डिक्लेरेशन, कॉलिंग एंड डेफिनेशन, सबका सिंटैक्स आपके पास यहाँ बोर्ड पे नजर आ रहा है इस वक्त स्लाइड पे। आपने रिटर्न टाइप देना है, डिक्लेरेशन के लिए रिटर्न टाइप कोई भी नाम होना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने नाम रखा है फंक1, फंक1 उसके साथ फॉरेन ब्रैकेट्स सेमीकोलन, ये फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके बाद कोई भी मेन प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है, बीच में आपने कहीं पे फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन कॉल करते हुए नो रिटर्न टाइप फंक्शन1 सेमीकोलन, ये फंक्शन कॉल कहलाता है। फंक्शन कॉल हो गया, खत्म हो गया, ये ब्रैकेट को हम सही कर देते हैं, ये वाली ब्रैकेट नहीं हो गई, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद रिटर्न टाइप आ गया, रिटर्न टाइप में आपके पास सॉरी उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन आ गया, फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न टाइप बताना होगा, फंक्शन1 जो भी नाम है वो, उसके बाद आपने ब्रैकेट डाल दिया, कोई सेमीकोलन नहीं आएगा और उसका जो भी कोड है वो डाल दिया और आखिर में भी कोई सेमीकोलन नहीं है, इसको कहते हैं हम फंक्शन बॉडी। नेक्स्ट है क्लास फंक्शन के बेसिक कंपोनेंट्स, क्विकली रिवाइज करते हैं। डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप स्पेसिफाइज फंक्शन नेम, आर्गुमेंट टाइप्स एंड रिटर्न वैल्यू, फंक्शन का नेम बताना होता है, उसमें आर्गुमेंट के टाइप्स बताने होते हैं, इस वक्त हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक है, नो आर्गुमेंट है। एंड रिटर्न वैल्यू बतानी होती है, इस वक्त हमने रिटर्न वैल्यू भी वाइड रखी हुई है, ठीक है, वाइड का मतलब है नो रिटर्न वैल्यू। अलर्ट्स कंपाइलर एंड प्रोग्रामर दैट अ फंक्शन इज कमिंग अप लेटर, ये कंपाइलर को बता रहा होता है कि एक फंक्शन जो है वो थोड़ी देर में आने वाला है। Call causes the function to be executed,
जैसे ये वाली लाइन थी। दिस इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग। देन डेफिनेशन, द फंक्शन इटसेल्फ, जो फंक्शन काम कर रहा है, दैट इज उसकी डेफिनेशन इज बेसिकली डिफाइनिंग अ फंक्शन कंटेन्स द लाइन्स ऑफ कोड दैट कंस्टिट्यूट द फंक्शन। जैसे हमने कोई भी लाइन ऑफ कोड लिखी, इससे पहले एग्जाम्पल में हमने जो कोड बनाया था वो फॉर लूप यूज करते हुए स्टार्ट 30 टाइम्स प्रिंट किया था। डिक्लेरेटर एक और कंपोनेंट हमें पता चला जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन और डेफिनेशन। डेफिनेशन की जो फर्स्ट लाइन होती है दैट इज डिक्लेरेटर, जैसे वाइड फंक्शन और ब्रैकेट्स। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है चार, डिक्लेरेशन, कॉल, डेफिनेशन, डिक्लेरेटर। ये आपको पता होना चाहिए ताकि आगे लेक्चर्स में अब हम यही वर्ड्स यूज करेंगे और आप फौरन पिक कर लें कि किस लाइन की और किस पार्ट ऑफ द बॉडी की बात हो रही है। लास्ट है क्लास स्लाइड, दैट इज फ्लो चार्ट। फंक्शन का फ्लो चार्ट, ये बहुत गौर से समझिएगा, इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। फंक्शन का जो फ्लो चार्ट होता है क्लास, फंक्शन कॉल करने के लिए, ज़रा अपने मेन बॉडी का आप फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं। फंक्शन कॉल करने के लिए जो बॉक्स यूज होता है वो होता है आपके पास ये प्रोसेस बॉक्स विद डबल लाइन। ये आपके विजुअल स्टूडियो में ये बिल्कुल होगा, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन कॉल का एक बॉक्स है जिसमें प्रोसेस बॉक्स है और प्रोसेस बॉक्स में डबल लाइन होती है। दिस इज फंक्शन कॉल, इस बॉक्स को हम कहते हैं। फंक्शन जब भी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट टर्मिनेटर से होगा, बीच में कोड के हिसाब से उसके बॉक्सेस आएंगे। जब डिसीजन ले रहे होंगे तो डिसीजन, जैसे हमने फॉर लूप यूज किया तो फॉर लूप का यहाँ पे फ्लो आ जाएगा, और आखिर में रिटर्न वैल्यू के लिए टर्मिनेटर अगेन। अब क्लास ये एक एग्जाम्पल है, इसको समझ लेते हैं ताकि जब आप फ्लो चार्ट बनाए फंक्शन का तो बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो। प्रोग्राम का फ्लो चार्ट हमेशा मेन से स्टार्ट होगा, जैसे कि सबको पता है। तो सबसे पहले मेन, टर्मिनेटर बता ही रहा है कि मेन स्टार्ट हुआ। उसके बाद इनपुट फ्रॉम स्विच, हमने स्विच से कोई इनपुट लिया है, कोई प्रोग्राम है एक रैंडम, ठीक है, उसका फ्लो चार्ट बना हुआ है। इसमें हम बेसिकली फंक्शन का फ्लो चार्ट सीख रहे हैं। इनपुट फ्रॉम स्विच, यूजर से हमने इनपुट ले लिया, आउट ऑफ स्विच, स्विच के थ्रू हमने डिफरेंट केसेस शो करके उसमें से कोई एक उसने केस दिया। उस केस के हिसाब से जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने स्विच स्टार्ट किया या ऑन किया, इसने डिसाइड किया कि क्या स्टार्ट हो गया या नहीं। अगर स्टार्ट की प्रेस है, यस नो में डिसीजन हो रहा है। इफ यस, तो कुक जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए, कुक का फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। और कॉल होने के बाद वापस से वो इनपुट ले रहे हैं। और अगर प्रेस नहीं किया है तो फंक्शन पे नहीं जा रहा है, नॉट प्रेस की सूरत में वो दोबारा से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम है जो कि यूजर से स्विच इनपुट ले रहा है। अगर स्विच यूजर ने ऑन कर दिया है तो कुकिंग स्टार्ट हो रही है, और अगर नहीं ऑन किया है तो वो दोबारा से पूछ रहे कि स्विच ऑन करना है या ऑफ करना है, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। अब क्लास मेन में फंक्शन को कॉल किया गया है तो मेन में वो बॉक्स यूज किया जिसको फंक्शन कॉल बॉक्स कह रहे हैं। उसके अंदर वो फंक्शन का नाम है जिसको कॉल करेंगे। जैसे अगर मुझे स्टार लाइन का बनाना है तो मैं ये बॉक्स बनाऊंगी। जब कॉलिंग की लाइन आ रही है, 4 दफा आ रही है मेन में, तो मैं फर्स्ट टाइम में चारों दफा यानी कि ये कॉल का बॉक्स बनाऊंगी और उसके अंदर यहाँ लिख दूंगी स्टार लाइन, क्योंकि मेरे फंक्शन का नाम है स्टार लाइन। बहरहाल इनके फंक्शन का नाम है कुक, इन्होंने कुक को कॉल किया। ये प्रोग्राम, ये फ्लो चार्ट सिर्फ मेन का है। फंक्शन का फ्लो चार्ट दोबारा बनेगा। फंक्शन का फ्लो चार्ट क्या कह रहा है कि कुक जब कॉल हो गया तो इसका मतलब है डेफिनेशन में चला गया। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि कुक को स्टार्ट कर दो, टर्मिनेटर शोज दैट कुक इज स्टार्टिंग। कुक स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसने जो भी उसका काम था, आउटपुट हीट इज ऑन, इसने आउटपुट कर दिया कि हीट इज ऑन, उसने बता दिया यूजर को। उसके बाद उसने इनपुट लिया कि टोस्ट का टेम्परेचर कितना रखना है। अगर टोस्ट का टेम्परेचर लेवल से कम है तो ये टू कोल्ड है, दोबारा इनपुट टेम्परेचर ले ले। और अगर ये टोस्ट का टेम्परेचर जो भी यूजर ने इनपुट किया है वो हमारी लेवल से ज्यादा है या उसके बराबर है तो आउटपुट कर दे कि हीट ऑफ कर दो, स्विच बंद कर दो और रिटर्न। तो काम क्या है इसमें बेसिकली कि फंक्शन कॉल के लिए ये वाला बॉक्स होगा, उसके बाद आप फंक्शन दोबारा बनाएंगे, फंक्शन का अपना फ्लो चार्ट है, ठीक है। स्टार्ट टर्मिनेटर से होगा और वही नाम यहाँ लिखेंगे जिसको कॉल किया गया। तो इन्होंने कुक कॉल किया है तो यहाँ पे कुक आ जाएगा, और उसके बाद रिटर्न कुक। कुक लिख दे तो अच्छी बात है, वरना रिटर्न का मतलब ही यही है कि ये वाला प्रोग्राम रिटर्न होके वापस यहाँ पे जा रहा है। और इसके अंदर प्रोग्राम का जो अपना कोड था उसके हिसाब से इनपुट बॉक्सेस और आउटपुट बॉक्सेस और डिसीजन बॉक्सेस यूज करते हैं। अगर मैं इसको स्टार लाइन के लिए बनाना चाहूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम था, तो हमने मेन लिखा,
यहाँ पे हमने लिख दिया सी आउट जॉनी जॉनी यस पापा, कोई डिसीजन बॉक्स नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्टार लाइन का कॉल है। फिर इसके नीचे दोबारा प्रिंट बॉक्स बनाऊंगी, ईटिंग शुगर नो पापा। फिर दोबारा कॉल करूंगी मैं, दोबारा ये वाला बॉक्स रिपीट होगा। फिर थर्ड लाइन आ जाएगी प्रोग्राम पोएम की, फिर दोबारा कुक होगा। फोर्थ लाइन आ जाएगी, फिर दोबारा वो स्टार लाइन वाला प्रोग्राम कॉल होगा। तो 4 दफा मुझे हर एक लाइन के बाद इसको ड्रॉ करना होगा और आखिर में मैं फिर एंड कर दूंगी, क्योंकि मेरा लूप तो है नहीं, वापस तो जाएगा नहीं प्रोग्राम, वहां पे जाके एंड हो जाएगा। फिर मैं स्टार लाइन का एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी। यहाँ मैं इस टर्मिनेटर में लिखूंगी स्टार लाइन, ठीक है, स्टार लाइन का प्रोग्राम है। इसके नीचे आ जाएगा फॉर लूप की पूरी एग्जीक्यूशन, फॉर लूप का पूरा फ्लो चार्ट, यानी कि इनिशियलाइज किया आई को 1, फिर चेक किया डिसीजन बॉक्स में क्या आई 30 हो गया, अगर नहीं हुआ है तो प्रिंट करते जाओ स्टार, और अगर हो गया है तो बाहर आ जाओ, रिटर्न कर दो। ठीक है, तो वो वाला फ्लो चार्ट आ जाएगा जो फॉर का फ्लो चार्ट है, जिसमें काउंटर भी आएगा, इनिशियलाइजेशन भी आएगा, डिसीजन भी आएगा, टेस्टिंग जिसको कहते हैं, काउंटर भी आएगा। प्लस प्लस करके चलता जाए, और जब काउंटिंग 30 हो जाए तो नो करके यहाँ पे बॉक्स में बना दूंगी रिटर्न का। तो यानी कि 4 दफा ये फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कॉलिंग मेन में 4 दफा शो करनी है, और हर दफा जब भी स्टार लाइन कॉल होगा, स्टार लाइन का फ्लो चार्ट आपने वहां पे एक दफा बना के रखा हुआ है। तो ये आप इसको बना के देख लीजिएगा। और ये फ्लो चार्ट की एग्जांपल बिल्कुल अपने सामने रखिए, क्योंकि फंक्शन की लैब्स के लिए आपको फंक्शन के फ्लो चार्ट्स बनाने होंगे, फंक्शन से रिलेटेड क्विजेस असाइनमेंट में आपको फंक्शन के फ्लो चार्ट्स बनाने होंगे। तो आप जो की पॉइंट है वो याद रखिए कि पहले मेन का फ्लो चार्ट बनेगा, बिल्कुल मेन के बॉक्सेस कोडिंग के हिसाब से, फंक्शन कॉल होगा और फिर फंक्शन के फ्लो चार्ट्स बनेंगे फंक्शन के कोडिंग और फंक्शन के बॉक्सेस के हिसाब से। तो क्लास ये जो है स्लाइड नंबर 15 तक ये आज का पार्ट 1 है, इसको सुनिए सही से, इसको चेक कीजिए, अपनी अटेंडेंस लगाइए। क्लास अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी होगा, जो दोनों में अटेंडेंस मार्क करेगा उसको अटेंडेंस मिलेगी। बाकी है कि फ्लो चार्ट और सेंटेंस और कॉम्पोनेंट्स, इसको बार बार सुनिए क्योंकि ये बेसिक है। रिकॉर्ड वर्जन इसीलिए इसका अपलोड किया ताकि आप बार बार इसको सुन के रिवाइज कर सकें, फिर ज़रूरत पड़ेगी आगे तो हम ऑनलाइन वर्जन इसका रख लेंगे। तो यहाँ पे क्लास पार्ट 1 एंड हो गया है। पार्ट 2 जो होगा, क्लास वो फिर हम थोड़ी देर बाद जो उसको इंशाल्लाह शेयर करते हैं, और वो भी आप सब देखिएगा, जो कि पासिंग आर्ग्यूमेंट्स पासिंग बाय वैल्यूज़ के नाम से होगा।